Hello everyone, my name is Lakshmi Joshi. Hope you all are doing good. So those who know me, welcome to the channel, and those who don't know me, why don't you subscribe to my channel? But it's okay. I introduce myself. My name is Lakshmi Joshi. I am a cabin crew trainee in Air India. As of now, we are in training, and we have completed our 2 months of training, and is still left with 1 month or 1.5 month, I think so. So today's video, as you already got to know through thumbnail, that we are going to create this video on questions and those who asked me on comment section as well as on Instagram DM that we have a lot of queries regarding the crew, through which I'm gonna make this video. So on the last video I have asked that if you have any questions regarding the personal, means if you have any query regarding me, then you can let me know. But most of the people have the query regarding cabin crew. So today we are going to resolve it. Today we are going to together answer those questions. So firstly I'm gonna answer it, and if you have any solution over it, then you can let us know on the comments and help each other. So without wasting a much delay, let's directly jump into the video. Okay, so I have just wash my hairs. Hope I'm looking good without makeup also. I look quite good, means I think so that I look quite good without makeup than makeup. I think so. I don't know, means my roommates also think so, and I don't know about others. So let's get directly jump into the queries. Before that, I just want to tell you that these are my Instagram IDs. I'm gonna let you know, follow me on that also, and you will get to know कि क्यों फॉलो करना ज़रूरी है या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. You will get to know in the video. So let's get started. Okay, I'll start with the first query. So first question is asked by Hina. I wrote down all the queries on notebook so that I could not miss any of them. So yeah, I'll try my best to cover everything and every question. So the first question asked by Hina, that can I get to know regarding interview. ओके, सो बेसिकली उनकी हिना की क्वेरी है कि उसको अपडेट कैसे मिलेगी रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ की. इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कि एयर इंडिया में कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, इन सब की क्वेरीज उन्हें कहाँ से मिलेंगी. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू. So if you want to know regarding the cabin crew interview of any of the airline, then I just want to tell you one application, and that is Map Aviation. Map Aviation आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा. सिंपली डाल देना Map Aviation, आपको मिल जाएगा. उसे इंस्टॉल कर लो और फ्री वाला लेना, पैसे वाला मत लेना, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग एंड आई एम टेकिंग इट फ्री वाला. ठीक है. देयर यू आर गोइंग टू गेट द डेट ऑफ द इंटरव्यू, वेन्यू, लोकेशन एंड एवरीथिंग. किस एयरलाइन का हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा उसमें. एज वेल एज आप इंस्टाग्राम में पेजेस हैं जहाँ पे अपडेट देते हैं वो लोग इंटरव्यू से रिगार्डिंग, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो. इससे भी आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द सेम. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन. So Khushi Pandey has asked me that, hey Dee, I have a little bit dark spot. It is an issue to become a crew or not? First of all, hi Khushi. So this is not only her query, but so many people have the same query regarding dark spot, regarding scars. So the answer is no, not at all. Problem नहीं होती है. If you have a little dark spot, as Khushi mentioned, yes, Khushi, as Khushi mentioned that she has a little bit of dark spot, so you can just apply concealer and conceal it. As well as if you have a big dark circle or any mark over your hand or over your face, is still यहाँ पे मेरे है, I don't know you can see or not, यहाँ है, just conceal it because it's very little. And if it is a big, then also I would suggest you to go and give interview, because you never know what day is written for you. So might be it is your day and you're gonna rock it on that particular day. So never give up on those things, little things. So the third question which asked by Poonam Kumari regarding eyes, that she has a weak eyes. So basically उसका क्वेश्चन है कि उनकी आई साइट वीक है, और मैं इसके लिए ना सिंपल आंसर भी लेके बैठी हूँ. Look at this. These are my specs. And एक लड़की का एक और क्वेरी था कि उनकी ना पावर निगेटिव में है. सो व्हाट शी सपोज टू डू. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरी पावर भी ना निगेटिव में ही है, मेरी पावर भी माइनस में है. सो डोंट वरी, वो
आइज़ कमज़ोर होने में, आइज़ वीक होने में कभी रिजेक्ट नहीं करते कि आप लेंस पहन सकते हो। और ड्यूरिंग इंटरव्यू लोगों की ये भी क्वेरीज होती है कि ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ हम स्पेक्स लगा के जा सकते हैं। सो मैं बोलूँगी कि आप लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्या किया था कि मुझे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी पर्टिकुलरली, तो मैंने स्पेक्स नहीं लगाए थे। पर जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या है पावर, जब उन्होंने मुझसे पूछा था ऑन द सेकेंड राउंड, आई जस्ट लेट देम नो द ऑनेस्ट आंसर कि मेरी पावर नेगेटिव में है। हाउएवर आई एम गोना अप्लाई लेंसेज, so if you're gonna wear lenses then there is no issue regarding the same. Okay, hope this answer will help you. Hope all these answers will help you actually. Okay, so fourth question was asked by, I'm so sorry if I'm pronouncing wrong, Umi Eman. Okay, so after the interview where will be our training? This is an interesting question. I think I was also very excited after giving the interview also. So ट्रेनिंग कहाँ होगी बेसिकली वो पूछ रही है कि इंटरव्यू देने के बाद. So Air India always conduct their interview in 3 locations. First is Delhi, second is Mumbai, third is I think बैंगलोर और हैदराबाद, दोनों में से कोई एक. मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ कहीं कि, और या फिर कहीं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी वो लोकेशंस. पर मेजरली वो अभी ले रहे हैं मुंबई में और दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो हमारा मुंबई में हुआ था, पर अभी जिन के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और जिन से मेरी बात हुई है वो यही बोल रहे हैं कि उनको दिल्ली बेस मिल रहा है, दिल्ली उनको इंटरव्यू हो रहा है और दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग हो रही है. मुंबई भी लोकेशन हो सकता है और दिल्ली भी लोकेशन हो सकता है. ओके, एज वेल एज एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, व्हेनेवर यू आर गिविंग इंटरव्यू ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, एंड स्पेशली दोज हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, हमेशा लास्ट में खुशी, अच्छी बात है, मनाओ कि आप सेलेक्ट हो गए हो, पर खुशी होने के बाद ना 2-3 क्वेश्चन मैंडेटरी आस्क देम. फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा लोकेशन क्या होगा. सेकंड क्वेश्चन कि मुझे ना मेल कब आएगा, और अगर मेल आएगा नहीं तो प्लीज़ मुझे कोई मेल आईडी दे दीजिए. सो एंड थर्ड थिंग रिगार्डिंग योर सैलरी, रिगार्डिंग एनीथिंग, व्हाटएवर क्वेरी यू हैव ओवर योर हेड, जस्ट आस्क देम एंड क्लियर देम ओवर देयर ओनली, क्योंकि वो वहीं पे मिलते हैं, फिर उसके बाद तो वो नसीब भी नहीं होते इंटरव्यूवर्स. सो हाँ. Okay, the fifth question is asked by Sakshi Singh that I gave my interview on 8th February and got mail on 23rd of February but haven't received my mail yet. Okay, so साक्षी सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था 8 फेब को और उनको मेल रिसीव हुआ है 23rd ऑफ फेब को. तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है. एंड सिर्फ इसके साथ नहीं, मैं बोल रही थी ना कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंस्टाग्राम में क्यों आपको फॉलो करना ज़रूरी है. मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ना क्वेरीज़ पूछी थी, अपनी सेम क्वेरी थी उनकी कि उनको सेलेक्टेड है, वो कोई एक पर्टिकुलर डेट है जिसमें वो सेलेक्टेड है, उसके नेक्स्ट डे उनको बोला गया है कि मेल आ गया है, बट स्टिल वो उनको कॉल नहीं रिसीव हुई है. अभी तक उनको कुछ बोला नहीं है मेडिकल्स के लिए या फिर आगे जो भी प्रोसीजर है उन चीज़ों के लिए बोला नहीं है. तो बहुत लोग ऐसा क्वेरी पूछ रहे थे. एंड सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू क्रू ओवर द इंस्टाग्राम में, अगर कोई भी मुझसे क्रू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, मैं उसको ऑनेस्टली मेरी तरफ से जितना हो सकता है ना मैं उसको आंसर देती हूँ. क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो स्टक इन बिटवीन ऑफ दीज थिंग्स एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मेरा टिकट कब आएगा. देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग दिसंबर आई रिमेंबर, एंड आई आस्क्ड अ रैंडम पर्सन ओवर द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में पर्सनली मैंने डीएम किया, पर किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे. तो आई हैड a lot of confusion, and as well as I was stuck in between all these confusions. And so when people ask me one query, आफ्टर दैट एक क्वेरी के बाद ना उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ जाती हैं. वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं ना. आई अंडरस्टैंड योर सिनेरियो, मैं समझ सकती हूँ आपके सिनेरियो को कि आप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब आप नए आते हो, किसी नए कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो बहुत सारी क्वेरीज होते हैं और आप चाहते हो कि कोई सामने बैठे और आपको आंसर दे वो सारी क्वेरीज का. सो आई अंडरस्टैंड योर सिनेरियो. आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, ask question as much as you want, and I'm here to help you out. I'm here to help as much as I can from my end. You know, that time you need someone to help you out, so don't worry. You know, थोड़ा देर बाद ना ऐसा समय आएगा जब आप मेरी जगह में बैठे होकर आप सामने वाले को बोलोगे अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेरी है, मैं बताता हूँ कैसे होगा. सो देयर विल बी टाइम. आप जब धीरे धीरे चीज़ें करने लगोगे ना, आपको ये सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे. अभी ये क्वेरीज होती हैं क्योंकि आप अभी इनिशियल पार्ट, पर बाद में सब रिजॉल्व हो जाएंगे, तो डोंट वरी. ओके, सो लेट्स गेट
जंप इनटू द आंसर, बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन था साक्षी सिंह का कि इन्होंने इंटरव्यू दिया था 8 फरवरी को और 23 को उनका मेल रिसीव हुआ था, पर उसके बाद उनको कोई भी मेल नहीं आया। तो मैं उसको साक्षी को एज वेल एज टू ऑल दोज पीपल हु हैव द सेम क्वेरी, आपको यही सजेस्ट करूँगी जिसमें आपको मेल आया है ना कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, उस मेल में रिप्लाई करो, एक टाइम करो। अगर एक टाइम में रिवर्ट नहीं आता है तो 2-3 टाइम करो रिवर्ट, पर रिवर्ट का वेट भी करो एट द सेम टाइम, ओके। एंड रिवर्ट में बोलो दैट आई एम अ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड प्लीज़ हेल्प मी रिगार्डिंग द मेडिकल डेट और यू नो वट एवर थिंग्स यू need in the process, just my location, when I'm going to receive my tickets, or when my medical is going to be done, or am I going to receive my medical reports or not। वो भी मेल आए ना उसमें रिवर्ट करो एंड 2-3 दिन का वेट करो एंड अगेन रिवर्टेड बैक। एंड अगर आपके सर्कल में कोई फ्रेंड है जस्ट आस्क देम कि आप भी मेल करो, और अगर उनको रिप्लाई आ गया है तो उनसे पूछो। और अगर आपके एंड अपने ना सर्कल में देखो, अगर किसी को रिवर्ट आया है ना तो उससे बोलो कि वो मेल आईडी हमें हेल्प करे, ताकि वो मेल आईडी लेके आप रिवर्ट कर सको उस मेल आईडी में। द 6th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड, दैट इज़ PhD ट्रेनिंग। सो बेसिकली मुझे किसी ने पूछा था कि PhD ट्रेनिंग होती क्या है। सो इफ़ आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट मीन्स, आई नो दैट व्हाट इज़ PhD ट्रेनिंग, बट आई डोंट नो दैट PhD ट्रेनिंग में क्या प्रोसीजर होता है, ओके। तो मैंने जितना यूट्यूब में देखा है और जितना वीडियोस देखे हैं उसमें यही पता चलता है कि PhD ट्रेनिंग एक वो ट्रेनिंग होती है जिसमें इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि आप में किसी, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, कोई भी एक स्किल में ना उनको लैक लगता है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं प्री हायरिंग ट्रेनिंग के थ्रू, PhD के थ्रू वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर स्किल में। और वो 1 वीक में या 2 वीक में आपका फिर से टेस्ट लेंगे या फिर आपको इंटरव्यू देना होगा एंड उसके थ्रू आप अपनी PhD ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। आप यूट्यूब में भी पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो PhD ट्रेनिंग पे। PhD ट्रेनिंग आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें क्लियर कर लेना, बट पर्टिकुलरली यही चीज़ें होती हैं। 1 वीक बाद शायद वो फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं एंड आपको वो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वो वापस वो ट्रेनिंग में डाल देते हैं। लोगों की ये भी क्वेरी थी कि PhD ट्रेनिंग करने के लिए उनको रिवर्ट नहीं आया। सो इंस्टाग्राम में एक लड़की थी जिससे मेरी बात हो रही थी, तो उसको बोला गया था कि 5 दिन में उसको रिवर्ट आएगा, बट उसको रिवर्ट नहीं आया था। तो मैंने उससे बोला कि एटलीस्ट वेट फॉर 1 वीक। 1 वीक मीन्स 2 दिन और वेट करो, 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मेल कर देना। उसको रिसीव हुआ था मेल, पर उसको कोई रिवर्ट नहीं आया था रिगार्डिंग दी सेम कि कौन सी डेट में उनकी PhD ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ब्ला ब्ला। सो उसने 2 दिन वेट किया एंड 2 दिन बाद ही उसको रिवर्ट आ गया था एंड उसने मुझे सामने से बताया कि दैट आई हैव रिसीव्ड द मेल एंड थैंक यू सो मच। सो आप वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो एंड एटलीस्ट 1 वीक वेट करो एंड 1 वीक बाद PhD का रिवर्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी आ गया था। एंड अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेल करो उनको वापस से कि आई एम अ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर PhD ट्रेनिंग, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई ट्रेनिंग डेट येट, सो प्लीज हेल्प मी रिगार्डिंग दिस। 7th question is asked by Amira Khan. She is asking regarding the training fee. Okay, so this is also one of the most asked question. Everybody has a lot of query regarding the training fee कितनी होती है। एंड एक और क्वेश्चन है इसी के साथ कि हाउ मच दे चार्ज फॉर AI cabin crew training and one can pay in installment or not। तो ये बहुत सारे लोगों की एक साथ क्वेरी है, 2-3 लोगों की क्वेरी एक साथ है कि एक ट्रेनिंग की फ़ी क्या है और दूसरा क्या हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और नहीं। तो बिकॉज जब दिसंबर में हायरिंग चल रही थी तब से बता रही हूँ, दिसंबर में जब हायरिंग चल रही थी तब 1,05,000 ट्रेनिंग फ़ी थी। बट however now when candidates are selecting now in March and Feb और मार्च में आई थिंक जो भी ज्वाइनिंग हो रही है उसमें 50,000 ट्रेनिंग फ़ी है। ये रिसेंटली हैव आस्क्ड समवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, देयर वाज न्यू बैच केम, 78 बैच नंबर था एंड 78 बैच नंबर से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनसे ट्रेनिंग फ़ी जो चार्ज हो रही है वो 50,000। सो यस वन कैन पे इन इंस्टॉलमेंट और नॉट। बी वाला क्वेश्चन का आंसर देना भूल गए। सो इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते हैं, अब तक मेरे नॉलेज में मुझे पता है इंस्टॉलमेंट में वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली वो एक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होता है बैंक के थ्रू, तो नहीं अलाउ। ओके, सो हिना हैज़ अ क्वेरी दैट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड द मेल रिगार्डिंग द लोकेशन एज वेल एज शी हैज़ अ क्वेरी रिगार्डिंग मेडिकल दैट whether she is going to be selected or not, or you know
बेसिकली क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपको लोकेशन नहीं मिला है सो आप उनको मेल करो कि मुझे मेरा लोकेशन जानना है या फिर चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना ये सारी चीज़ें ना आप ना हमेशा इंटरव्यू के दौरान क्लियर कर लिया करो। जैसे कि हमने ना इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से पहले उनसे मतलब सेलेक्ट होने के बाद उनसे ये क्वेरी पूछ ली थी कि एंड बेसिकली वो बता भी देते हैं। उन्होंने सामने से, मुझे याद है उन्होंने मुझसे पूछा था कि आर यू कंफर्टेबल स्विचिंग इन मुंबई। सो मुझे याद है उन्होंने सामने से मुझसे पूछा था। बट अगर आपसे वो नहीं पूछते हैं तो क्लियरली आस्क देम कि एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन की मेडिकल में अगर मैं क्लियर नहीं हो पाई तो वाला, तो मैं बता दूं कि जब आपका इंटरव्यू होता है उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है या फिर हमारा नेक्स्ट डे हुआ था मेडिकल। एंड उसकी रिपोर्ट ना आपको हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में आके मिलती है। मतलब जब आप अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हो, जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हो, जैसे कि अगर आप अभी दिल्ली में स्टे कर रहे हो, आपने दिल्ली में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में आओगे, मुंबई में आओगे और मुंबई में आके आपको ना वो मुंबई में आके ना वो आपको क्लियर करेंगे कि आप मेडिकली फ़िट हो या नहीं हो। एज वेल एज इफ़ यू आर नॉट फिट तो डोंट वरी एट ऑल दे आर व्हाटएवर अमाउंट यू आर रिक्वायरिंग वो आपको बता देंगे कि इतने मंथ इतने वीक हम आपको दे रहे हैं, आप रिकवर कर जाओगे। एंड मैं बता दूँ अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है ना तो वो आपको फिर उसी वक्त बता देंगे। वो ऐसा नहीं है फिर आपको रटका के रखेंगे कि नहीं आप ट्रेनिंग सेंटर में आओ, फिर ट्रेनिंग सेंटर में से आपको वो वापस भेजेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप एक बार ट्रेनिंग सेंटर में आ गए तो आपको वहाँ से रिटर्न में नहीं भेज रहे हैं कि आप जाओ, आप अपना पहले 1-2 मंथ का सही करके आओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर आओ। ऐसा नहीं होता ना इशू के मतलब ऐसा नहीं आपको वो स्ट्रेस दे देंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है। नहीं, ऐसा कोई टास्क नहीं है। जितने दिन ट्रेनिंग चल रही है ना उतने दिन आपका ट्रीटमेंट आराम से आप कर लो एंड फिट टू फाइव करके आपको सब अच्छे से हो जाएगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल। ओके ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो द 9th question, Shreyashi S is asking that is wearing specs allowed in the interview? Can we wear lenses? So I have already answered this question. Yes, of course you can wear lenses as well as specs. And you know इवन इन ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो आप वेयर कर सकते हो। सॉरी, इवन ट्रेनिंग सेंटर में तो वेयर कर ही सकते हो। एज वेल एज यू नो इन फ्लाइट ऑल्सो यू कैन वेयर स्पेक्स। पर उसकी ना कोई रेंजेस होती हैं, कुछ उसको पर्टिकुलर होता है कि मतलब आप इस तरह की स्पेक्स नहीं पहन सकते इन फ्लाइट में, क्योंकि ये थोड़ी सी फैशनेबल हो जाती हैं। अदरवाइज़ एक एरिया होता है जब आप ट्रेनिंग में आओगे तो आपको ट्रेनर्स बताएंगे कि कैसे अलाउड है कैसे नहीं अलाउड है। आपको PDF गिवन होगी, सब कुछ बताया जाएगा। सो उस तरह के अगर आप स्पेक्स बना लेते हो तो आप इन फ्लाइट भी आप पहन सकते हो। हाउएवर आई एम गोना वेयर लेंसेज। ओके सो नेहा इज आस्किंग इज AI प्रोवाइड PhD क्लासेस? एयर इंडिया प्रोवाइड्स PhD क्लासेस। वो देती है PhD क्लासेस एंड वो दे भी रही है इस समय। Okay, so the 11th question is asked by Saloni Kumari. I also got selected in AI, but my passport is not ready. Please reply. I'm very stressed. First of all, Saloni, do not stress because you are watching my videos and stress लेना बिल्कुल मना है। सलोनी की क्वेरी है कि उनका पासपोर्ट जो है वो रेडी नहीं है और वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो सलोनी ने मुझे ये भी बताया था उसकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो 17 मार्च 2023 है और उसको 10 डेज़ चाहिए थे। तो आई सजेस्टेड हर ऑन पर्सनली ऑल्सो, आई थिंक शी आस्क्ड मी ऑन कमेंट सेक्शन, सो आई रिप्लाइड हर ऑलरेडी। पर मैं ये क्वेश्चन बताना चाहती थी क्योंकि ये सिर्फ एक गर्ल की क्वेरी नहीं है, बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमारा पासपोर्ट रेडी नहीं है। सो ना सजेस्ट करूँगी ना, बी ऑनेस्ट विद दैम। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना इंटरव्यूअर के सामने, आप जितना ऑनेस्ट रहोगे अपने ट्रेनर्स के सामने ना, वो आपको उतना हेल्प करेंगे। एंड जब आप मेल भी कर रहे हो ना तो ऑनेस्टली लेट देम नो दैट यू आर नॉट हैविंग अ पासपोर्ट और ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो यू आर नॉट हैविंग द पासपोर्ट। हाउएवर आई प्रॉमिस दैट विथिन 10 days 14 days आई एम गोना गेट माई पासपोर्ट। और जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपको एक प्रूफ मिलता है, तो वो प्रूफ आप दिखा सकते हो वहाँ पे कि मैंने अप्लाई कर दिया है पासपोर्ट के लिए। बस वेरिफिकेशन होगा और 14 दिन में या 10 दिन में आ जाएगा। सो इन सलोनी की सिनेरियो, she is going to get it. She was already applied for it and she was about to get it in during 10 days. So 10 डेज़ की बात थी तो मैंने उसको सजेस्ट किया था जस्ट लेट देम नो ऑनेस्टली बाय मेलिंग देम। सो उसने मेल किया एंड उनको बताया एंड उन्होंने क्या किया कि उनकी ज्वाइनिंग 17 मार्च थी 2023। एयर इंडिया वालों ने सुना एज वेल एज उन्होंने हेल्प किया बाय प्रोवाइडिंग, उन्होंने एक नई ज्वाइनिंग डेट उनको दे दी। को बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा व्हेनेवर यू आर मेलिंग देम, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर एंड
whatever things are happening. Next question is that what percentage is required for becoming cabin crew in 12th class? So जब आप गूगल में सर्च करोगे ना तो गूगल में ऐसा दिखाएगा कि 60% रिक्वायर्ड है, बट रिसेंटली जब अब एयर इंडिया ने अभी अपनी हायरिंग करना स्टार्ट किया था मेल और फीमेल दोनों की, उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट था कि मिनिमम 50% इज़ रिक्वायर्ड इन 12th क्लास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मिनिमम आपको 50% चाहिए टू बिकमिंग अ क्रू फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर हाइट, वेट, ओके, BMI एंड एवरीथिंग। सो हाइट और वेट में सब BMI में बता दे रही हूँ। सो मिनिमम हाइट जो आपकी होनी चाहिए फीमेल इज़ 155 सेंटीमीटर, एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर, एंड मिनिमम हाइट फॉर मेल इज़ 172 सेंटीमीटर. So BMI range is 18 to 22 for female and 18 to 25 centimeter for male candidates, and weight is supposed to be proportional to the height. So this is what exactly about weight and height. और BMI आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल में जाके BMI कैलकुलेटर जाओ, वहाँ पे अपनी हाइट डालो, वेट डालो, आपको BMI का पूरा चार्ट आ जाएगा कि आपका नॉर्मल है, ओवर वेट हो या अंडर वेट हो, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट. So 13 question is asked by Siddhant. Hi, I want to know about male hiring. First of all, hi. So मेल हायरिंग के बारे में मैं बता दूं कि मेल हायरिंग एयर इंडिया हायर कर रहा है मेल हायरिंग, एंड 7 मार्च को मैंने अपने, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक पोस्ट भी की थी कि 7 मार्च को मैंने एक पोस्ट भी की थी कि 7 मार्च को वो हायरिंग कर रहे थे, एंड उन्होंने ये भी बोला था कि वो 24 आवर ही वो लिंक वैलिड रहने वाली है, एंड 24 आवर्स के बाद वो वैलिड शायद नहीं रहेगी. अगर लिंक वैलिड होगी तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर. ओके, सो 14 क्वेश्चन इज कैन यू टेल मी रिगार्डिंग PI राउंड क्वेश्चन. ओके, सो पर्सनल इंटरव्यू में ना मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ इतना सच नहीं हुआ था. वो पता है पर्सनल इंटरव्यू में ना आपके रिज्यूमे से पूछते हैं, जैसे कि मेरे रिज्यूमे में रिटर्न था दैट आई वांट वर्किंग इन दिल्ली इन विस्तारा एयर. उन्होंने ना मुझसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे दैट व्हाई डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम विस्तारा टू एयर इंडिया. उन्होंने ये पूछा था. फिर सेकंड उन्होंने मेरे इंटर्नशिप के बारे में पूछा था, जो कि वो अगर एक्स्ट्रा पूछ भी रहे थे ना तो वो यही पूछ रहे थे व्हाई डू यू वांट टू बी अ क्रू, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयर इंडिया, व्हाई यू स्विचिंग, एंड आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल व्हाइल स्विचिंग यूर बिटवीन दिल्ली टू मुंबई और लखनऊ टू मुंबई, जहाँ भी आप हो वहाँ से मुंबई और वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर. तो ऐसा वो पूछ रहे थे. उसके अलावा वो आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे रहे थे, जैसे मुझे पूछा था सिचुएशनल, बट देयर इज़ अ वेजिटेरियन पैसेंजर ओवर योर फ्लाइट एंड यू डोंट हैव दी वेजिटेरियन फूड अवेलेबल, देन इन दैट सिनेरियो हाउ वुड यू रिएक्ट. एंड अगर वो बहुत शाउट कर रहा है आप पे और वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या सिनेरियो में हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे. सो यही सारे सिचुएशन क्वेश्चंस थे जो वो पूछ रहे थे, इतने ही थे जितने थे. ओके, so the fifth question is not a question. Actually, I just want to thank all these people in fifth. On my last video, I had mentioned 3-4 topics of GD rounds. जितना भी मैं कलेक्ट कर पाई उतना मैंने बताया, पर और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी सबको कि अगर आप सब ने इंटरव्यू अटेंड किए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर अटेंडिंग इंटरव्यूज़. सो ऑफकोर्स जब इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो GD राउंड तो होता ही है, सबसे पहला वही होता है. तो मैंने बोला था कि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हेल्प करना, हेल्प ईच अदर. सो आप कमेंट में अपने अपने टॉपिक ज़रूर बताना. सो दीप्ति मित्रा, नफीशा आलाम, नेहा झा, निकिता नेगी, पूनम शर्मा, सरस्वती जट. Thank you so much to all these ladies for putting your efforts and helping each other and giving your time. थैंक यू वेरी वेरी मच. जो भी टॉपिक आप सब ने दिए थे मैंने वहीं पे पुट कर दिए हैं, तो जिनको भी हेल्प चाहिए वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाना. उसी वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लास्ट वीडियो का, आप वहाँ पे जाके सारे टॉपिक्स देख सकते हो GD से रिलेटेड. एंड दिस इज़ इट. दीज ऑल आर द क्वेश्चन विच आई हैड कलेक्टेड बाय माई सेल्फ. ओके, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ इफ़ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रू. ओके, एंड ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी. एंड सी व्हेन यू कम इनटू माय पोजीशन, आपका एक टाइम आएगा जब आप इन सब प्रोसीजर से निकल जाओगे और आप ट्रेनिंग सेंटर में आ जाओगे. फिर ट्रेनिंग के बाद फ्लाई करना स्टार्ट कर दोगे. एंड दैट टाइम ट्राई टू हेल्प अदर पर्सन ऑल्सो. इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, इग्नोर मत करो, DM में जाकर रिप्लाई कर दो, क्योंकि आपका एक एफर्ट मे बी किसी की हेल्प कर दे. ठीक है, बस यही चाहती हूँ मैं. अदर देन दैट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.
Thank you so much for watching up to the very end. Hope this video was helpful for you guys, and still if you have query, let me know on the comments, let me know wherever you want to. अगर आप Instagram नहीं चलाते हो तो YouTube में ask कर लो by मैं. So yes, मैं बहुत बोलती हूँ ना. I'm so sorry. Thank you so much for watching. Bye bye, take care, and next video में मिलते हैं. बताना कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊँ. Okay, bye.